So we were here doing this question. So I think up to pressure group 11 तक हमने कर लिया था. How to code pressure and the pressure tendency, barometric tendency. So this 5A pp is basically your barometric tendency and how much the pressure is increased or decreased. So this quantity gives that if the, as per the code, if the pressure is decreasing, or if he writes minus 2.8, that means there is a tendency for pressure to decrease. अब आपका आ जाता है ग्रुप 12, 7 WW, capital W1, W2. So this is, if you see the table, अगर आप टेबल खोल, not 12, table 13. So in this case you see present weather, it says 7, first digit is the indicator code. So 7 को तो कुछ नहीं करना. Next is 63. So you have to go to 63 in table 13. So there again he is writing moderate rain, not freezing. So 63 code is moderate rain, not freezing. को कुछ नहीं करना, वही 63 when you go open and write down the same thing what is written there. And W1, W2 is basically your past weather के लिए. If you see in the past weather, W1, yeah, capital W1, W2 is past weather. So कम है, only 1 to 9. So but here we have to repeat, like there can be two phenomena taking place or same phenomena continuously, like continuous rain. So then we do a double thing. So in this case he has written 6-4. Now you please यहाँ पे थोड़ी सी आपको केयरफुल रहना है. जहाँ पे पास्ट पेपर्स में देखा मिस्टेक हो जाती है. W1, W2 जब आप लिखोगे ना, ये तो डी कोडिंग है. नो, डी कोडिंग इज 6-4 लिखा. जब आपने कोडिंग करनी है, देयर आर टू फिनोमिना. 6-4 में 6 इज रेन एंड 4 इज फॉग और थिक हेज. सो कई बार आपके पास दोनों फिनोमिना दिख रहा है, तो यू शुड नॉट राइट 4 and 6. यार रेन भी हो रही है, फॉग भी है, हेज भी है, इज गिवन इन द क्वेश्चन. पास्ट वेदर देयर वाज रेन एंड देयर वाज फॉग एंड, तो ये आपने ध्यान रखना. इट शुड नॉट बी 4-6, इट शुड बी 6-4. नाउ कम्स योर ग्रुप 13, 8 NH, CL, CM, CH. So 8 तो आगा इंडिकेटर कोड. NH is again your low cloud amount. So आपके क्वेश्चन में उसने दिया होगा how much is the low cloud amount, 2/8, 4/8, 5/8 sky. So here if I have to decode, so I go to 8 is this thing, next is 4. That means 4 octaves or 4/8 of the sky is covered by the low. CL का कोड है आपका 3, isn't it? 8, 4, 3, 6, 4. So 3 में अगर हम देखें तो 3 में दिखता है CB present, none of the upper part is partly fibrous or in the form of an anvil. So आपका CB is present, cumulonimbus present, none of the upper part is. तो आप ऐसा ही उठा के वहाँ लिख सकते हो decoding के टाइम. 3 का means cumulonimbus present और cumulonimbus present, ये भी चलेगा. Next is medium clouds के लिए 6, medium cloud is 6. So code 6 is AC present, isn't it? So AC is your altocumulus present or altocumulus formed by spreading out of this thing. So पहले केस में था cumulonimbus present, medium clouds में altocumulus present, and again low cloud 4/8 sky, low cloud CB cumulonimbus, the summits of which lack sharp. ये देखो complete वही उठा के लिख दिया. Medium clouds AC resulting from spreading out of CU CB, and third code है 4, that is for the high cloud. CH का 4. हाई क्लाउड CH, दैट इज सीरस इन द फॉर्म ऑफ हुक्स. तो ये आपके लिए थोड़ा सा मैंने देखा है यहाँ पे. यू गेट 3 इज फॉर लो, 6 इज फॉर मीडियम एंड 4 इज फॉर हाई क्लाउड्स. DDD, DS, अगेन दिस इज द डायरेक्शन. फोर्स मेड गुड लास्ट 3 hours, 3 and 4. सो 3 गिव्स यू द डायरेक्शन एंड V गिव्स यू द स्पीड. सो 4 जो है 16 to 20 knots. तो ये भी आपके पहले से 222 है वो उसका सर इंडिकेटर कोड. 222 will always remain. This is the indicator code. Yes. Yeah. लास्ट के 2 ही डिजिट जो है, ये देखो DS, VS मींस एक डिजिट DS का, एक डिजिट VS का. सो फर्स्ट डिजिट DS मींस डायरेक्शन का कोड 3 एंड VS का कोड 4. सो हम टेबल खोलते हैं, जब DS VS के टेबल में जाते हैं, डायरेक्शन में 3 देखिए तो साउथ ईस्टर्ली दिखाएगा एंड 4 का 16 to 20 knots. सिमिलरली नेक्स्ट इज योर अगेन सी टेम्परेचर. टेम्परेचर तो हमने काफ़ी भर. 0 इज अगेन इंडिकेटर कोड. SN इज अ पॉजिटिव नेगेटिव. 0 मीन्स पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव, एंड देन ये 3 डिजिट जो है TW 3 डिजिट्स 17.5 डिग्री सी वाटर टेम्परेचर. एंड उसके बाद ये आपके 3 कोड जो हैं, दिस इज बेसिकली CP, पीरियड ऑफ वेव्स, PW एंड हाइट ऑफ वेव्स. एंड दूसरा वाला फर्स्ट, दिस इज द स्वेल, डायरेक्शन ऑफ द स्वेल, एंड सेकेंड डायरेक्शन ये
स्लैश मीन्स नो सेकंड स्वेल प्रेजेंट. सो नॉर्मली एक स्वेल ही हमें दिख जाए वो बहुत है, सेकंड स्वेल तो नोबडी कैन मेक आउट. सो दिस इज द DW इज द स्वेल डायरेक्शन, and similarly PW and SW is the period of swell and height of swell. So पहला waves है, second is the swell. तो ये भी easy है. यहाँ पे एक चीज आपको केयरफुल रखनी है और याद रखना है कि जब आप इसकी कोडिंग करोगे तो इट इज नॉर्मली डबल. जैसे PW is the period of wave, वो तो as it is आ जाएगा. Period of wave हम यहाँ से पढ़ते हैं 0.8, that means 8 seconds. And next is the height of waves. Height of waves, so coding के टाइम में we always double, we always multiply by 2. So decoding के टाइम में इसको divide by 2. So 4 meters. So mostly अगर आपको कोडिंग का मैसेज आता है कि कोड दिस वेदर रिपोर्ट, तो वहाँ पे मेरा स्वेल होगा और द सी जो होगी, सी हाइट 4 मीटर्स है, उसको 0.4 नहीं, उसको मैं डबल करके लिखूंगा, डिकोडिंग में हाफ कर दूंगा. एंड सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ द स्वेल. सो डायरेक्शन 3 को छोड़ दीजिए, 0.2, वही वाली डायरेक्शन 0.2 मीन्स 0.20 डिग्रीज. Swell is coming from 0.20 and slash means no second swell. And similarly आप क्या first this period of swell and height of swell, यहाँ पे भी similar double. So decoding में इसको half and the coding करना है तो 3 मीटर को मैं 6 मीटर दिखाऊंगा. चलो एक क्वेश्चन करें अपने आप, फिर जहाँ जहाँ मुश्किल आए. Can you all see the question? Yes sir. Clear? सर एक बार एक समझा दीजिए. हाँ जी बोलिए. सर 6 नंबर का सर IR IX HVP. IR का सर IR टेबल गया. ओके, उसमें नंबर सर 4 है. ओके, IR के टेबल पे आप जाते हो, नंबर 4 टेबल. बेसिकली हमने जो प्रेसिपिटेशन ग्रुप है, प्रेसिपिटेशन मींस लाइक रेन. शिप वी नो दैट इट इज रेनिंग, वी कैन report that the weather it is raining, but we cannot report how much rain, we cannot measure the amount, isn't it? There is no instrument. Normally we don't have the water rain gauge. होता है, there is a rain gauge जिससे वो बताते हैं, न्यूज़ में आपने देखा होगा so many millimeters of rain. So we have no instrument such. तो इसके लिए IR IX में आप देखिए precipitation group omitted. Yes sir. Thank you sir. Precipitation group not sent because I have no means. Next is क्या होता है, IX means कि स्टेशन मैन्ड है, ऑटोमेटिक है, 415. Yes sir. उसने लिखा है 1. सो सेकंड दैट इज द मीनिंग, स्टेशन इज मैन्ड, शिप इज मैन्ड, एंड ये ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, इसके लिए उसका कोड 1 बन गया. एंड स्टेशन ग्रुप 7WD1 इंक्लूडेड. गुड. तो नेक्स्ट 93 कंपेयर कीजिए टेबल से. ग्रुप में कौन, अगेन 3 इज योर इंडिकेटर कोड एंड 27 इज द डायरेक्शन. ये देखा ना 2 डिजिट है, DW1 DW 2 डिजिट, 27 इज द डायरेक्शन. अभी 27 डायरेक्शन कौन सी, 270 डिग्री. अभी हमने डायरेक्शन में पढ़ा था ना, विंड डायरेक्शन एंड ऑल दैट. सो एवरेज जो है 270 आ जाती है. नॉर्मली आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम 264 और 265 टू 274. Yes sir. तो फिर वो DW. सो नॉर्मली अगर आपको जैसे कोडिंग में, अभी हम कोडिंग नहीं कर रहे, डी कोडिंग में हम जाते हैं कि डी कोडिंग में ही हैज मेंशन 3 to 7 स्लैश. तो यहीं से द मोमेंट यू लुक एट द क्वेश्चन कि ये 3 to 7 स्लैश मीन्स ये स्वेल की डायरेक्शन है एंड दिस स्लैश मीन्स नो सेकंड स्वेल. तो यहीं से आपको 3 इंडिकेटर कोड, फर्स्ट स्वेल की डायरेक्शन 270, 27 मीन्स 270. ओके, तो यहाँ तक पहुँच के तो जस्ट कंपेयर. तो ग्रुप 7 and DDFF 7/8 sky 70510. 7 is again the amount of your sky cover. So 7 octaves from 7/8 sky covered with clouds, and then DD 05 and FF 10. So 05 is the wind direction. Again आप ऐसे भी लिख सकते हो 045 to 054 degrees. Otherwise if you ask me I will write 05 को again 050 050 डायरेक्शन से है विंड, because I don't think anybody so accurately can say यार 1 डिग्री विंड डायरेक्शन हम मेक आउट कर सकते हैं. बट एनीवे क्वेश्चन है, प्रेफरेबली प्लीज राइट इट लाइक दिस. वहाँ से आपने पिकअप करना है. सो 045 to 054. 10 means 10 knots. 1 SNTT. Again 1 is the indicator code. 0 to 85. 0 1 indicator. 0 is the sign. 285 is the temperature. 28.5. Group 9 2 ascent. TD dew point. Same. 2 को छोड़ दीजिए, 0 is for plus and 208 is the dew point. 208 means 20.8. 4 pp pressure. 4 again छोड़ दीजिए, is the group indicator. Again ZG. तो यहाँ से पता लगता है. देखो इस क्वेश्चन को हमने पूरा again pressure tendency 5 AP, 5 indicator code
pressure tendency is छोटा A is the barometric tendency या pressure tendency A is 3. So 3 क्या दिखाता है, अगर हम टेबल खोलते हैं, atmospheric pressure decreasing और steadily then rising. So 3 वहाँ पे उसका कोड आ गया कि rising है, steady है, decreasing है, पेस्ट कर दीजिए. And 036 is the degrees or the amount by how much it is increasing or decreasing. So it is plus 3.6. So atmospheric pressure decreasing or steadily then rising. Barometer higher than before by 3.6. 7 WW, capital W1, W2, 7 को छोड़ दीजिए. Small W1 or small WW is 0. So 06 code is widespread dust in suspension in air and past weather. Now this is the WW is the present weather, past weather, W1, W2, thunderstorm, fog and haze. तो यहाँ पे ये दो कोड होंगे 9 and 4. So you can write 9 में thunderstorm and fog and haze दोनों आएगा. 13 NH, CL, CM, CH. So again total amount cloud 4 octas, 4 है. Then 29 is 2 is for low cloud, 9 is for middle and again 9 is for high. बुक में तो सर बहुत बड़ा. So decoding में कोई प्रॉब्लम नहीं. Very nicely written 4 and 2. 4 is the direction. Again टेबल में कोड दिया हुआ है 4 का कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. Last 4 hours south and 6 to 10 knots. Then comes again sea water temperature 0. Next 0 is for positive sign and 206 is the temperature, that is 20.6. Then PW, HW. PW means waves का period and again height of waves, period of waves, height of waves. ठीक है. Any doubt anybody? सबका हो जाएगा तो बच्चे बताओ. थोड़ी सी फिर कोडिंग की इंट्रोडक्शन जाती है. कोडिंग के क्वेश्चन क्या. दिस इज व्हाट इट इज. डेट, शिफ्ट टाइम, शिप्स पोजीशन, कोर्स स्पीड. सर लिख लिया बच्चे, क्वेश्चन लिख लिया सबने. यस सर. सबको टाइम मिलेगा. ओके डियर, देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. सो इसको लिख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए. सो व्हाटएवर डेटा यू नीड, quote the following weather observations taken on vessel at 1750 IST on 4th January when the vessel was in so and so position. So just write down position, time and then on your exercise book draw those columns, write down the codes, groups and उनके नीचे क्या लिखोगे. पहले YYGG IW. Anybody started writing YYGG IW में क्या आएगा. सर 041803 041803 041803. Anybody else? 04183. Okay. Anybody else? Anything? Anybody else who is differing, who doesn't agree with RS? Everybody agrees. यही वाला लिखेंगे 04183. ये बोलिए जल्दी से. नेक्स्ट ग्रुप पे चलो फिर. क्लियर देखिए, आपका पहला स्टेप ही गलत हो गया. फर्स्ट ग्रुप इज आपने 04 डेट इज ओके. व्हाट इज GG? The time of observation. कौन सा टाइम होना चाहिए वो. To the नियरेस्ट होल आवर ऑफ विच क्लॉक. the GMT. तो ये आपके सामने क्या लिखा है. सबका ही गलत है. यू गाइस आर गोइंग टू बी नेविगेटर्स मैन. हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कन्वर्ट SI इंडियन स्टैंडर्ड टाइम टू GMT. सर 1 2. तो क्या बनेगा ग्रुप. पूरा ग्रुप का कोड क्या बनेगा. 04. बोलिए आगे बोलिए. ठीक है. प्लीज बी वेरी केयरफुल. इसका आपने ध्यान रखना है. इट इज ऑलवेज द GMT टाइम. ओके. डेट इज गिवन 04. GG इज द UTC यूनिवर्सल टाइम क्लॉक. What we call GMT. Next group. चलो anybody here? Why you want me to point out anybody's name? बताइए. What is the next group? 99 LA here. Latitude QC LO. Yeah. Okay. So latitude is north and longitude is west. So आपका quadrant 7. Okay. Next 7 017 minutes west. तो क्या बनेगा ग्रुप. 03 0302. आपने 02 लिखा and 5 भी बचते हैं तो उसको isn't it we write IR IX. IR is basically indicator for precipitation, isn't it? So precipitation amount not available, we don't know how much rain. So 4 almost, most of the time it is 4 only. IX खोलिए, कोड खोलिए, अपना कोड बुक खोलिए. ठीक है बच्चे, आप काफी पीछे चल रहे हो. आई थिंक UX में क्या आएगा. 1. यस वेरी गुड. सो क्या बना ग्रुप 4 1. अभी हाइट ऑफ द क्लाउड H. हाइट कितनी बनी. Sir 300 meters. ओके. देखिए कोड में देखिए. 3. इज इट 3 और 4. सर वो एंडिंग वैल्यू है तो सर अगर 4 लेंगे तो 300 से 600 के बीच. कौन सी वैल्यू लेते हैं. सर 4. हायर वैल्यू. ठीक है. अप टू 300 या लेस देन 300 होगा तब आपने लोअर वैल्यू 3. अगर 300 आ गया तो जो कॉमन है दोनों में, isn't it? So that time we will take. सर IX क्या रहेगा. IX आपका 1. IX क्या है. इंडिकेटर फॉर स्टेशन ऑपरेशन, isn't it?
स्टेशन ऑपरेशन मीन्स इट इज अ मैन स्टेशन। खोलिए कोड खोलिए, उसमें देखिए IX इट्स अ मैन स्टेशन, शिप इज अ मैन स्टेशन, ग्रुप 7 स्मॉल w कैपिटल W1 W2 इज इंक्लूडेड, पास्ट वेदर प्रेजेंट वेदर इज इंक्लूडेड, तो इसके लिए कोड फिगर 1। ओके सर। चलो नेक्स्ट, तो कितना आ गया? सर 93 411। क्या है आपकी विजिबिलिटी कितनी है? सर 0.21 नॉटिकल माइल है, तो एक नॉटिकल माइल 1854 मीटर्स, तो 0.2 हो गई आपकी ऑलमोस्ट 370 मीटर्स, तो 500 से लेस है तो 93 इज कमिंग 0.3 नॉटिकल माइल। अब विजिबिलिटी कितनी दिखा? 0.21, 93 इज 0.3, क्योंकि आपके कोड में मीटर्स में दिया, अगर आपने कन्वर्ट किया है इजंट इट, तो 0.2 नॉटिकल माइल कितने मीटर हो? टेबल 6 ना, पेज 14 पे देखिए। सर 200 तो नहीं होगा, तो फिर 93 500 मीटर ही रहेगा। 500 मीटर में 0.21 नॉटिकल माइल कितने मीटर बने? एक नॉटिकल माइल में कितने मीटर होते हैं? आइडिया? एनीबॉडी एल्स? सर 1853। या 1852 meters. 1 nautical mile is 1852 meters. So 0.21 nautical mile will be how much? Just so quick it is, isn't it? 1852 multiplied by 0.21, it gives you 388.9. So 389 meters की visibility है। 389 कहाँ पे लाई करेगा? मीटर्स में भी अगर आप देखिए तो, isn't it? If your visibility, यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। If the visibility is 200 meter or more than 200 meter, then it goes to 93. Up to 200 it is less than 500, isn't it? So 92 में आएगा ये। दिस कोड विल बी 41492। ओके, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है यहाँ। ओके नेक्स्ट, हाउ मच इज द टोटल अमाउंट क्लाउड? स्काई इज फुली कवर्ड बाय द क्लाउड्स, इजंट इट? सो व्हाट विल बी द कोड फॉर फुली कवर्ड? स्काई फुली कवर्ड बाय क्लाउड्स, व्हाट विल बी द कोड? यस, ओके, एन के बाद क्या है नेक्स्ट? एंड DDFF, isn't it? So what is DD? Direction of the surface wind. What is the direction of the surface wind? सर 090। Hmm. सर 09 आएगा। Okay, very right. So 809. Next is NDAFF. FF क्या? I hope all of you have written down these groups. 42 बोलिए, next group बोलिए। सर 7.5 डिग्री। Okay, बोलिए क्या लिखोगे, इसकी कोडिंग कैसे? 0075। Very good. 1 SNTT is your 1075. Okay, ये भी हो गया। Next 2 SN। सर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। Point, very good. Dew point. So 2 का 2। सर 2072। ओके, वेरी गुड। ड्यू पॉइंट आपको दिया, अगर नहीं दिया होता तो हम उसे निकाल भी सकते हैं। ड्राई एंड वेट बल्ब, समटाइम इन द क्वेश्चन ही में गिव यू ड्राई एंड वेट बल्ब रीडिंग्स, तो गो टू द ड्यू पॉइंट टेबल, वहाँ से ड्यू पॉइंट निकाल के 2 का 2, SN मीन साइन, दैट इज पॉजिटिव इज 0, एंड आगे आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज 7.2। वेरी गुड, चलो ये भी लीक हो गया। सो विजिबिलिटी एंड आपने जो टाइम है उसमें मिस्टेक नहीं करनी। मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन दिया बिकॉज ये क्वेश्चन एक ग्रुप को दिया था, तो 90% ऑफ द गाइज मेड अ मिस्टेक, दे रोट 18। प्लीज़ आई होप रिमेंबर ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइम जो है उसको 1800 नहीं, उसको हमने GMT में कन्वर्ट करके लिखना है। चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट? 4 PPP 4952। वेरी गुड। एनीबडी डिफरिंग फ्रॉम दिस? किसी और का कोई और आंसर आता हो तो बताइए। 4 एंड देन द he has given the pressure, barometric pressure is 95.2, so point को हम निकाल देंगे, 952 आ गया। चलो नेक्स्ट इज 5A PP प्रेशर टेंडेंसी बैरोमीटर एज फॉलोइंग, इसको कर रहे हैं या 57 के बाद में 56 लिखना चाहते हैं? 57। चलो यहाँ तक हो गया सबका, प्रेशर तक, बैरोमेट्रिक टेंडेंसी तक सबका हो गया। एनीबडी स्टिल नॉट डन? क्या कहते हैं, क्या हो गया? रखते तो जवाब भी नहीं देते आप। सबका हो गया, चलें आगे। यस सर। कहीं पीछे है, एक स्टेप पीछे बता। तो यहाँ तक तो ये अभी XX and then sign and the first GGIX वो आपने लिया, GMT मिस्टेक नहीं करेंगे। 9LA LO बंगचो IR IX HVV। IR is basically your again rain, because rain का अमाउंट हमें पता नहीं है, इसके लिए most of the time the IR जो होता है that always comes as 4, isn't it? IX जो है mostly 1 कि past weather, present weather is included. NDFF total cloud amount, DD is your wind direction, and FF is the wind speed. 1 SNTT temperature, 2 SNTT again dew point, and then comes the pressure. So I don't think so कुछ मुश्किल आनी चाहिए कि प्रेशर कितना है। अगर 1000 में दिया तो उसका 1000 इग्नोर करना है, 1 को इग्नोर करना है, अदरवाइज लाइक 99 5.2 दिया है उसको स्ट्रेट में 4 डिजिट्स हैं हमारे पास, isn't it? 4 PP and 5A is the barometric tendency. Barometer is decreasing
कितना डिक्रीज किया? -2.1, isn't it? तो 2.1 डिक्रीज किया तो कम 2157021। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पे आ जाइए। 7W1 W2 76258। एनीबडी डिफरिंग? एनीबडी विद डिफरेंट आंसर? मेरा आंसर अलग है, कुछ भी गलत हो सकता हूँ। उनका तो 7 आ गया। प्रेजेंट वेदर, व्हाट ही हैज सेड, व्हाट इज द प्रेजेंट वेदर? Intermittent, not freezing. Yeah, there is an intermittent moderate rain, not freezing at the time of observation. 721 present weather. Yes, this is the present weather. Mist, shallow, यहाँ पे भी नहीं है. Not freezing, not falling in showers. सर 6-2 आएगा 6-2 उसमें। अब वो रेन कह रहा है तो आप रेन के कोड में दीजिए ना। 62 बोलता है मॉडरेट रेन। प्रेजेंट वेदर में है barometer has fallen steadily. There is intermittent moderate rain, not freezing at the time of observation. Okay, 62 के बाद 5 सर 5-8 5-8 वो कहता है drizzle and rain slight. He says intermittent rain continues. There is an intermittent moderate rain at the time of observation. Okay, so I think it should be 6-2. दोनों 6-2 हो जाएंगे। सर पास्ट। So it is past weather में drizzle and rain था। Now again यहाँ पे remember कीजिए higher figure पहले लिखना है, isn't it? सर कौन सा higher पहले? Yes, higher figure means जैसे 5 and 6 है तो 5-6-5 आएगा। ओके सर। ये देखिए जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, ये 76265। ओके, तो ये चीज़ मैं देख रहा था कि एनीबॉडी शुड कम अप कि आपने ठीक है W1 पास्ट वेदर जो लिया है, कैपिटल W1 W2, उसमें दो चीज़ें हैं, ड्रिजल भी है, रेन भी है। तो इसमें हमेशा आपको कुछ भी पहले हो 2, 4, 2, 6 आता है तो हमेशा हायर फिगर को पहले 6-2 लिखना, 2-6 नहीं लिखना, 6-2 लिखना। तो ये जो आपका कोड बनेगा 76265, ये याद है। तो उसका ऑटोमेटिकली जो कोड है फुली कवर्ड 8 ऑक्टास। लो क्लाउड्स, मीडियम क्लाउड्स एंड हायर क्लाउड्स कौन से हैं? द लेयर ऑफ निम्बोस्ट्रेटस कवर्स द स्काई, दैट्स ऑल। द लेयर ऑफ निम्बोस्ट्रेटस कवर्स द स्काई। सो लो क्लाउड है। अगर आप क्वेश्चन पढ़िए, वेसल एक्सपीरियंस रेन, लेयर ऑफ निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स कवर द स्काई, दैट्स ऑल। लेयर ऑफ निम्बोस्ट्रेटस में अगर हम जाएं तो Cl को तो हमने 0 कर दिया एंड देन वी गो टू निम्बोस्ट्रेटस, यस Cm में जाएंगे तो एज मोस्टली ओपेक और NS निम्बोस्ट्रेटस बट नो AC। तो यहाँ पे उसने लिख दिया निम्बोस्ट्रेटस, नो क्लाउड्स ऑफ टाइप Cm, AC प्रेजेंट। तो AC तो है ही नहीं वहाँ पे, ऑटोस्टेटस तो है ही नहीं, AC फाउंड बाय स्प्रेडिंग आउट ऑफ दिस थिंग, AC प्रोग्रेसिवली इंक्लूडिंग नो। तो जहाँ पे AC आ रहा है वहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यस ऑटोस्टेटस मोस्टली ओपेक और तो उसने कहा निम्बोस्ट्रेटस, इजंट इट? सो ये बन गया 802 एंड देन हाई क्लाउड, ओनली निम्बोस्ट्रेटस है, हाई क्लाउड्स भी नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। तो हाई क्लाउड में क्या आ जाएगा? अगेन नो क्लाउड्स ऑफ टाइप CH 0। तो कोड बन गया आपका टोटल स्काई कवर्ड 8। सो पहला आपका 8 का 8 देन 0 एंड मिडल के लिए 2, हाई के लिए 020। ओके, आई होप क्लियर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिस ग्रुप इज टाइम कंज्यूमिंग कि आप इफ नॉट देयर देन 0। तो नेक्स्ट इज योर 222 DS VS। सो 222 तो वही रहेगा, कोर्स मेड गुड ड्यूरिंग द लास्ट 3 hours एंड स्पीड, कोर्स एंड स्पीड। DS is course and VS is the speed. So what is the course she has steered in last 3 hours? Sir 270. Okay, she is steering 270 and speed 14 knots. Then the ship's course is 270, 14 knots. When we go to 270 का क्या आ जाएगा? The DS2 है, sorry sir 296. Yeah, west, isn't it? She is steering west, so 6 आ गया। So 222 and speed कितनी है? 14 knots कौन से ग्रुप में आएगा? 22263। वेरी गुड। ठीक है, आई होप आपको TW. सी वाटर टेम्परेचर, isn't it? तो सी वाटर टेम्परेचर कितना? 0 का तो 0, SN is the sign, प्लस है तो 0 एंड हाउ मच इज द सी वाटर टेम्परेचर? 7 डिग्री। 000। क्या ट्रिपल सी पीरियड एंड सी हाइट, isn't it? पीरियड ऑफ सी वेव्स कितना दिखाया उसने? 10 seconds. सर 210। Okay, very good. So 10 seconds and the height is 5 meters. यस सर। The ship's course is so much. Sea waves are estimated to be 5 meter high. The height of the sea waves is 5 meter and period of 10 seconds. So 10 seconds का तो आ गया same. 2
10 सेकेंड्स 10 एंड हाइट जो है उसको हमने हाफ मीटर, कितने हाफ मीटर, 5 मीटर, 10 isn't it? 10 half meters is equal to 5 meters. So basically it is known as how many half meters. So simply कि भाई उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा 2110. Next 3 dW isn't it? Swell direction, very good. So small waves are coming from 180 direction, height 4 meter, period 16 seconds, isn't it? So आपकी first जो 3 है वो that is the direction. So direction उसने लिख दिया, it's coming from 180 degree. Small waves are coming from 180 degree. So 180 की direction is normally 18, isn't it? 170 is 17, 160 is 16. So 3 का and direction of the sea waves we can write it is 318. And second swell not present, तो उसको हम slash कर देंगे. Okay. Next comes here 41608. हाइट जो है मेरी 4 मीटर है. अगेन 4 मीटर के कितने हाफ मीटर बने? 8. 16 seconds. Very right. So 41608, isn't it? देखिए तो this is how आपका जो आंसर है it should look like, isn't it? So आप ये कंपेयर कर सकते हो. फर्स्ट BBXX कॉल साइन आपने यहाँ पे लिख दिया. कन्वीनियंट है मेरे लिए. मेरे को ये 4-4 की लाइन में आप लिख सकते हो. इट वाज लाइक अ फीडबैक व्हाट आई फाउंड कि एक तो एरर यहाँ पे हो रही थी और एक आपकी विजिबिलिटी में हो रही है 92 या 93. तो उसमें भी हमेशा आपने देखना है कि जो भी विजिबिलिटी आ रही है, बिकॉज ही गिव्स इन नॉटिकल माइल्स, टेबल में किलोमीटर्स में दिया है, यू कैन इजीली कन्वर्ट इनटू किलोमीटर्स. सो 300 मीटर अप टू 300 मीटर तो वही वाला कोड आएगा. एंड इफ इट गोज बियॉन्ड 300 तो 300 से ऊपर जाता है फिर नेक्स्ट वाला कोड आ जाएगा. इसका आपने ध्यान रखना. दिस इज दैट्स ऑल. एंड क्लाउड्स, पास्ट वेदर, प्रेजेंट वेदर, उन ग्रुप्स में आपको थोड़ा टाइम लगेगा. कीजिए. I think you will become very fast, isn't it? So YYGG, lat, long, आगे आपका this is basically मैंने यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, so most of the time it remains as 4. IX is a type of station, it is automatic manned station, 1 रहेगा. H VV height 92 visibility. ठीक है, तो यहाँ पे गलत. अब आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए इस ग्रुप को. थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, NDFF जब हम विंड ट्रायंगल करते हैं, isn't it? So विंड ट्रायंगल में भी कई बार क्वेश्चन में डाल देता है व्हाट एंट्री यू विल मेक इन द वेदर रिपोर्ट. एक तो कहता है व्हाट एंट्री यू विल मेक इन द लॉग बुक. लॉग बुक में तो हम लिख देते हैं लॉग बुक में व्हाट एंट्री वी मेक द डायरेक्शन एंड द विंड फोर्स, isn't it? सो ट्रू डायरेक्शन इज एग्जांपल जैसे यहीं पे है 090. सो वहाँ पे हम क्या लिख, लॉग बुक में 090 राइट इन द क्वाड्रेंट्स ईस्टर्ली विंड. सो ईस्ट बाय विंड फोर्स. सो जितनी भी स्पीड से ब्यूफोर्ड स्केल के अकॉर्डिंग फोर्स 4, फोर्स 5, isn't it? So log book entry आपने ऊपर पहले लिख देना है विंड ट्रायंगल में कि ओके द ट्रू डायरेक्शन ऑफ द विंड इज जो भी आपकी आती है 090, स्पीड सो मेनी नॉट्स, एंड द लॉग बुक एंट्री आई विल मेक ईस्टर्ली एंड आगे या ईस्ट बाय सो एंड सो लिख सकते हैं. एंड सपोज आपकी विंड स्पीड जो है ट्रू विंड स्पीड विंड ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, अगर 42 आती है तो आई विल राइट 0942. जो भी डायरेक्शन आपकी आती है. कोड तो आपके पास है ही है, तो वहाँ से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो. नॉर्मली डायरेक्शन इज इजी, स्पीड जितनी आ रही है उतनी की. एंड आप लिख सकते हो बल्कि ये भी कि इन द वेदर कोड इन द ग्रुप NDFF आई विल राइट एन को चाहे ओमिट कर 0942. परफेक्ट आंसर, isn't it? कोई चांस ही नहीं. लॉट ऑफ टाइम मैंने देखा विंड ट्रायंगल सॉल्व करते हो वहाँ पे आप लिख देते हो ट्रू विंड डायरेक्शन सो एंड सो, विंड ट्रू विंड स्पीड सो एंड सो, बट उसने जो पूछा है वहाँ पे आपके 2-3 नंबर कम कर देगा. बिकॉज द गाय हु हैज रिटर्न परफेक्ट उसको तो 12 में से 12 मिलेंगे. अब जिसने सिर्फ विंड स्पीड तो निकाल ली है बट एंट्री छोड़ दी है तो 2 नंबर उसके कम हो जाएंगे. चलो आई होप क्लियर हो जाएगा. ओके, तो इसको कीजिए. बाई चांस कोई डाउट आता है लेट मी